مدد سے عوام کے ووٹ کے ساتھ نہیں مانتے نہیں مانتے ظلم کے یہ ضابطے رہا کرو رہا کرو رہا کرو یہ عوامی اسمبلی 47 حکومت قوم 47 حکومت یہ عوامی اسمبلی جو اس وقت آپ لوگوں کے سامنے 76 اراکین پر مشتمل ہے، اس کے پیچھے پاکستان کی عوام کے 12 کروڑ رجسٹر ووٹیں میں سے پول شدہ 6 کروڑ ووٹیں میں سے 6 کروڑ ووٹ لے کر کے اس وقت اس جگہ میں عوام کی نمائندگی کر رہی ہے۔ یہ عوامی اسمبلی آج 5 سپٹمبر ہمارے ممبران کو آج یہ عوامی اسمبلی 5 سپٹمبر 2025 کو یہ قرارداد پاس کرتی ہے۔ میں سارے نمائندگان سے ممبران صاحبان سے ریکویسٹ کروں گا کہ اس کے ختم ہونے پہ اپنی رائے دے دیں۔ یہ عوامی اسمبلی ہر قسم کے ہائیبرڈ نظام کو ماروائے آئین سمجھتی ہے اور ہر قسم ہائیبرڈ نظام کو مسترد کرتی ہے۔ نمبر 2، یہ عوامی اسمبلی آزاد عدلیہ کے لیے 26ویں ترمیم بڑی رکاوٹ سمجھتی ہے اور یہ چیف جسٹس سے پرزور اپیل کرتی ہے کہ 26ویں ترمیم کے خلاف دائر شدہ اپیلیں اور پٹیشنز بالفور سنی جائے فل کورٹ کے ذریعے سے۔ نمبر 3، یہ عوامی اسمبلی پریس اور میڈیا کو جمہوریت کا 4تھ پلر سمجھتی ہے اور اس کے ساتھ مطالبہ کرتی ہے، پرزور مطالبہ کرتی ہے حکومت سے کہ ہر قسم کے پابندیاں آزاد عدلیہ پہ اور آزاد میڈیا پہ اور پریس پہ ختم کیا جائے۔ یہ اسمبلی حکومت سے پرزور مطالبہ کرتی ہے کہ اس وقت افغانستان کے صورتحال کے پیش نظر انسانی ہمدردوں کی بنیادوں پہ ان کا افغانیوں کا اس ملک سے انحلا کو عارضی طور پر مؤخر کیا جائے۔ کیا سارے ممبران صاحبان اس ریزولوشن کے ساتھ متفق ہیں؟ یہ ریزولوشن پاس کیا جاتا ہے۔ آخر میں سب پاکستان تحریک انصاف کے ممبران صاحبان سے درخواست ہے کہ وہ اپنے متعلقہ علاقوں میں سیلاب زدگان کی بھرپور مدد کرے، ہیلپ کر لے، اور سارے پاکستان تحریک انصاف جو الائنس نے اچکزئی صاحب نے 8 سپٹمبر کو اسٹرائک کی کال دی ہے، ہم اس کو سپورٹ کرتے ہیں۔ شکریہ۔ سب سے پہلے تو میں اس عوامی اسمبلی لگانے پہ اپنے بانی چیئرمین اور موجودہ چیئرمین اور اسپیکر اسد کیسر اور تمام قائدین کا مشکور ہوں جنہوں نے فارم 47 کی اسمبلی مسترد کر کے یہاں پہ عوامی اسمبلی لگائی۔ 2-3 مختصر باتیں جی۔ رجیم چینج کے بعد 8 فروری تک حکومت نے جو ظلم و جبر کیا، جو پولیٹیکل انجینئرنگ کی، اس کے بعد 8 فروری عوام اٹھ کھڑے ہوئے اور انہوں نے حقیقی آزادی کے لیے اس ملک میں آئین و قانون کی حکمرانی کے لیے ووٹ دیا۔ انہوں نے اس اداروں نے اور موجودہ 3-4 پارٹیوں نے فارم 47 کے ذریعے یہاں پہ یہ مفلوج اسمبلی بنائی، حکومت بنائی۔ لہٰذا اس اسمبلی کا مقصد بھی یہی ہے عوامی اسمبلی کا کہ یہ عوامی ووٹ کو مسترد کر کے یہاں پہ فارم 47 کے ذریعے حکومت انہوں نے بنائی۔ پھر یہاں سے درجنوں ممبران قومی اسمبلی کو قومی اسمبلی کے اندر ہاؤس سے گرفتار کر کے لے گئے۔ ہم تو یہ محسوس کر رہے تھے کہ ہمارے یا صادق صاحب ریزائن کریں گے، لیکن انہوں نے پھر یہ سلسلہ جاری رکھا اور انہوں آپ یہ سوال کیجئے کہ 180 سیٹوں والے آج ایوان کے باہر ہیں اور 17 سیٹوں والے آج ایوان کے اندر ہیں۔ یہ کیسی جمہوریت ہے؟ یہ کیسی جمہوریت ہے جہاں ایک ایسا شخص جس نے پاکستان کے لیے سٹینڈ لیا،
इमरान खान साहब ने जब एब्सोल्युटली नॉट कहा था, वो पाकिस्तान के दिफा के लिए कहा था, लेकिन जब उन्होंने पीछे देखा तो वो जो उनकी हिफाजत पे मामूर थे वो एक रजीम चेंज का हिस्सा बन गए। आज 5 सितंबर है, कल 6 सितंबर है, यौम दिफा पाकिस्तान है, ईद मिलादुन्नबी भी है। मैं पूरी पाकिस्तानी कौम को ईद मिलादुन्नबी की मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ अपनी तरफ से, अपनी जमात की तरफ से और कौम के लीडर, उम्मत मुस्लिमा के लीडर जनाब इमरान खान साहब की तरफ से। लेकिन कौम के सामने ये सवाल भी रखता हूँ कि जब जब पाकिस्तान ने कॉल दी, जब जब पाकिस्तान पे मुश्किल वक्त आया, ये कौम तो खड़ी हुई, तहरीक इंसाफ भी खड़ी हुई, इमरान खान भी खड़ा हुआ। अभी जब पाक भारत जंग हुई है, उसमें इमरान खान साहब ने जेल की काल कोठड़ी से वो जंग लड़ी है। हिम्मत नहीं थी मियां शहबाज शरीफ साहब में, हिम्मत नहीं थी मियां नवाज शरीफ साहब में, हिम्मत नहीं थी मुल्क के सदर जनाब आसिफ अली जरदारी साहब में जो सुप्रीम कमांडर ऑफ द आर्म फोर्सेस हैं, और हिम्मत नहीं थी पंजाब की वज़ीर आला साहिबा में कि सिर्फ नरेंद्र मोदी का लफ्ज तक अपने मुंह मुबारक से निकाल सकते। ऐसे में आपको एक दलेर लीडर चाहिए होता है। इमरान खान ने अंदर से मैसेज दिया कि आपस का इख्तलाफ जितना भी होगा पाकिस्तान के लिए तहरीक इंसाफ खड़ी है। लेकिन यौम दिफा पाकिस्तान 6 सितंबर पे मेरा सवाल है कि क्या दिफा करना सिर्फ फौज का काम है या आवाम का? अगर सिर्फ फौज का है तो फौजें नहीं, कौमें जंग लड़ती हैं। लेकिन कौम तब जंग लड़ती है जब उसके महबूब लीडर और कौम की एक बात पे इत्तेफाक राय हो। अगर पाकिस्तान को मजबूत करना है तो इदारों और आवाम के बीच में फासला खत्म करना होगा और उसके लिए इमरान खान को बाहर लाना होगा, ये जुल्म बंद करना। जो कि बीमार हैं, डॉक्टर हैं, और उनके साथ जो हो रहा है पिछले अरसे से, ये जुल्म पाकिस्तान में कभी नहीं हुआ। और अगर ये हुक्मरानों का ये ख्याल है, जो इक़्तिदार में लोग होते हैं उनका ये ख्याल है कि हम हमेशा इक़्तिदार में रहेंगे, ये हमेशा इक़्तिदार में कोई नहीं रहता। यही इससे ज्यादा हरकतें कल को इनके साथ होनी है। लेकिन हम इनसे ये रिक्वेस्ट करते हैं कि ये हमारे सारे यहाँ पे इलेक्टेड लोग हैं, लाखों वोट लेके आए हुए हैं। इस एक एक आदमी को 1-1 अरब रुपए की ऑफर्स हुई। 26वीं तरमीम में इन्होंने वोट ठुकराया। इस एक एक आदमी पे 40-50 दहशतगर्दी के केसेस हैं, मर्डर के केसेस हैं, कारोबार बंद किए गए, फैमिलीज को अगवा किया गया। उसके बावजूद भी ये इमरान खान के साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। जितने भी हमारे इलेक्टेड लोग हैं यहाँ पे, इंशाअल्लाह हम इमरान खान के साथ हैं, उनके साथ रहेंगे। और हमारी फिर यही रिक्वेस्ट है चीफ जस्टिस साहब से खुसूसन कि आपने जो कहा है उस पे अमल करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप इमरान खान साहब को रिलीफ दें, उनसे मिलने नहीं दिया जाता। बाकी अदालतें जो फैसले कर रही हैं उन पे आप गौर करें कि वो आईन और कानून के मुताबिक फैसले कर रही हैं, या उनको नोटिस लेना चाहिए चीफ जस्टिस साहब को कि आप ही के हाई कोर्ट के 5 जजेस ने लिख के दिया कि जी हमारे साथ जो हो रहा है वो, उन्होंने बताया कि हमारे कमरों में कैमरे लगाए जा रहे हैं, हमारे रिश्तेदारों को अगवा किया जा रहा है इमरान खान साहब के खिलाफ और पीटीआई के खिलाफ, वहां पे उनके खिलाफ फैसले देने के लिए। तो मेरी इनसे अगेन ये रिक्वेस्ट है कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इन लोगों से तो हमें कोई उम्मीद नहीं है, ये तो स्टैंड ही जाली हुकूमत है। इनका तो अपना वोट ही नहीं है। 30,000 से 1 लाख, 30,000, 1 लाख 30 से 30,000। मेरे साथ एक कमेटी में एक मेंबर बैठे हुए थे, मैंने कहा जी आप कहाँ से इलेक्टेड है? उन्होंने मुझे कान में कहा कि जी मैं फॉर्म 47 वाला हूँ। फॉर्म इनको भी पता है, इनको सारों को पता है कि ये जीते हुए नहीं है, इनके हलकों वालों को पता है कि जीते हुए नहीं है। तो जब आपको खुद पता, जब लोगों को ये पता, आप लोगों को टैक्स कैसे लगा रहे हैं? आप लोगों के लिए कानून कैसे बना रहे हैं? ये काम नहीं चल सकता। ये पाकिस्तान को मजीद तबाही की तरफ लेके जाएगा। इंशाअल्लाह ताला हम अपनी तरफ से कोशिश करेंगे जमहूरियत के लिए, इमरान खान साहब के लिए, इस मुल्क के लिए। बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, 1 रुपए के अपने करप्शन के केसेस माफ कराए, 1200 अरब इन लोगों ने अपने करप्शन माफ कराई। ये कभी 26वीं तरमीम लाते हैं सिर्फ इसलिए अदलिया को दबाने के लिए। अदलिया से मुतालिक मैंने कल एक स्टेटमेंट सुनी है चीफ जस्टिस साहब की। स्टेटमेंट बहुत अच्छी है, उन्होंने सही बातें की हैं, लेकिन मेरी उनसे ये रिक्वेस्ट है कि आप तो इस पोजीशन पे बैठे हुए हैं,
इस मुल्क में अदालतों को फाल बनाना, फैसले सही करवाना, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इस मुल्क में आम आदमी को इंसाफ दिलाना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इस मुल्क में सियासी लोगों को, उनको आवाज उनकी दबाने वाली जो भी कोशिशें हो रही हैं, सबको पता है। आप लोगों को मीडिया का पता है कि मीडिया में सच बोलने नहीं दिया जाता, ऑफ एयर कर दिया जाता है, चैनल्स पे इश्तिहारात बंद कर दिए जाते हैं, लोगों को अगवा कर लिया जाता है। मीडिया की ये हालत है, अदालतों की ये हालत है कि उनको लिखे हुए फैसले भेज दिए जाते हैं, वो सिर्फ अनाउंस करते हैं। और जो इस वक्त सबसे पॉपुलर लीडर इमरान खान साहब, उनको न सिर्फ जेल में डाला हुआ है, उनकी सारी बेसिक जो ह्यूमन राइट्स हैं वो खत्म की गई है। उनको अपना घरेलू जो उनके जाती इस्तेमाल की चीजें हैं वो नहीं मिलती, उनको अखबार नहीं मिलता, उनको मीडिया का एक्सेस नहीं है, उनको फैमिली से 4-4 महीने नहीं मिलने दिया जाता। बुशरा बीबी साहिबा को रिहा किया जाए और हमारे लाहौर में 2 साल से जायद कैदो बंद में जो हमारे कायदीन हैं उनको रिहा किया जाए। और इस वक्त जो मुल्क में सैलाब है, तो सैलाब की सूरत हाल में मेरा ताल्लुक मुल्तान और जनूबी पंजाब से है। पिछले दिनों टिक टॉकर वजीर आला आई और उन्होंने कई घंटे महसूर रखा उन कैंपों में, उन सैलाब ज़दगान, उन मुतासरा खानदानों को सिर्फ अपनी तस्वीर बनाने के लिए, सवाए फोटो सेशन के, अश्क शोई के और कुछ वहां नहीं किया। और 3 लाख से ज्यादा लोग मुल्तान और जनूबी पंजाब में घरों से बेघर हैं। तो मेरा मुतालबा है कि उनको फौरी इमदाद पहुंचाई जाए। हम तहरीक इंसाफ के तमाम कारकुनान दिन रात अपने सैलाब के मुसीबत ज़दा भाइयों के साथ हैं। और यहाँ मेरा एक और मुतालबा है कि इमरान खान साहब जो दुनिया का मकबूल लीडर है और उन्होंने साबित किया है कि जब भी उन्होंने कौम को और दुनिया को आवाज़ दी है, जब भी कोई टेलीथॉन किया है तो वो कामयाब हुआ है। सैलाब की इस घड़ी में, मुसीबत की इस घड़ी में इमरान खान साहब की अगर आपने मकबूलियत देखनी है तो सिर्फ 1 घंटे के लिए उन्हें टेलीथॉन करने की इजाज़त दी जाए और उन्हें टेलीविजन के सामने बिठाया जाए। और वो जब दुनिया के सामने इस सैलाब की घड़ी में लोगों के इमदाद की बात करेंगे, लोगों से वो डोनेशन मांगेंगे, तो आप देखें 1 घंटे में आप देखेंगे कि अरबों रुपया इमरान खान साहब की आवाज़ पर, उनकी क्रेडिबिलिटी पर पूरी दुनिया देगी पाकिस्तान को इमदाद। तो ये मेरा मुतालबा है कि इमरान खान साहब से टेलीथॉन किया जाए और उनसे ये उनकी मकबूलियत जांचने के लिए ये सबसे बड़ा पैमाना है। और उन्होंने हमेशा ये साबित किया कि वो इमरान खान इस मुल्क के मकबूल तरीन लीडर है। शुक्रिया। वो हालात रखें जिन हालात की वजह से मजबूर होकर हम यहाँ तक पहुँचे हैं। मुल्क में एक तो सैलाब की जो सूरत हाल है, जितने लोग मुतासिर हैं, वो पंजाब हो, वो केपी हो या दीगर इलाके, तो हम उनके साथ खड़े हैं और अल्लाह ताला उन पर रहम करे। और मैं हुकूमत वक्त से भी ये मुतालबा करता हूँ कि बजाय फोटो शूट के उनके वाकई दादरसी की जाए और उनके जो हालात ख़राब हुए हैं, उनके जो मकानात गिरे हैं, उनके जो मवेशी ज़ाया हुए हैं, और उनको हर किस्म से फैसिलिटेट किया जाए, जो कि बिल्कुल भी पंजाब में इस तरह नज़र नहीं आ रहा जिस तरह होना चाहिए। मेरा शहर सरगोदा है, उसके नवाई इलाकों में बिल्कुल तबाही हो गई है, लेकिन सिवाय फोटो शूट के मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा। हाँ, हमारे अरकाइन असम्बली, हमारे अपने लोगों के साथ खड़े हैं और हर जगह पर खड़े हैं। 2-3 बातें। एक तो जितने इदारे हैं मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुके हैं। एक सिर्फ अदलिया को ही देख लें, जहाँ पर जजेस इस इंतजार में होते हैं कि कब फैसला आएगा और पढ़ के सुनाएंगे, जहाँ पे जजेस इफ और बट भी अपनी मर्जी से ना लिख सकें, जहाँ पर जजेस को जाके ये कहना पड़े कि हम बड़े मजबूर हैं, हमें हमारी जान छुड़वाई जाए इस निज़ाम से। तो खुदारा इस मुल्क पर रहम कर दें। मौला अली अलैहिस्सलाम का कौल है कि कुफ्र की हम हुकूमत तो रह सकती है, लेकिन जुल्म और नाइंसाफी की नहीं। तो ये जुल्म और नाइंसाफी की जो हुकूमत है, ये मुआशरा टूटने वाला है, उसको टूटने से पहले बचाने के लिए खुदारा इंसाफ कायम करें। सिर्फ एक जुडिशरी नहीं, पार्लियामेंट, वो पार्लियामेंट जो सबसे सुप्रीम इदारा है, अगर उसके अंदर से ही उसके MNAs को उठा लिया जाए, अगर उसके MNAs को
उसका गेट क्रॉस करके बाहर ना निकलने दिया जाए, तो फिर आप कौन सी जमहूरियत की बात करेंगे? तो फिर अतर मिनल्ला बिल्कुल ठीक कह रहा है, हाइब्रिड तो सिस्टम कोई नहीं होता, या जमहूरियत होती है या मार्शल लॉ होता है, अमरीयत होती है। दरमियान वाला सिस्टम सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए होता है, जो आजकल है। मुकम्मल तौर पर मुल्क में डिक्टेटरशिप है और एक ही शख्स है जो जिसकी सारी सुनी जा रही है, मानी जा रही है, और ये हमारे भाई जो MNA जो बलूचिस्तान में गुज़िश्ता दिनों धमाका हुआ है, खुदकश धमाका हुआ है, जिसमें 15 लोग शहीद हुए हैं और काफी लोग जख्मी हैं, हम इसकी मजम्मत करते हैं। और दूसरी बात यह है कि 8 सितंबर को उन्होंने बलूचिस्तान में जो है ना शटल डाउन का ऐलान किया है। हम अपने अलायंस की तरफ से और तहरीक इंसाफ की तरफ से और पार्लियामेंट की तरफ से उसकी हिमायत का ऐलान करते हैं। नंबर 2, एक रेजोल्यूशन और भी है। कल जो जस्टिस अतहर मिनल्लाह ने कराची बार में भाई छतरी पीछे कर दें, मेहरबानी करें, उसने जुर्रतमंदाना मौके पर अपनाया है और उसने खास कर कहा है कि ये हाइब्रिड सिस्टम डिक्टेटरशिप का दूसरा नाम है, तो हम उसकी मौक़िफ़ की हिमायत करते हैं और हम उम्मीद रखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस और हाई कोर्ट के तमाम जजेस अतहर मिनल्लाह के साथ इस मौके पे खड़े होंगे। हम इस पार्लिमानी जो इस वक्त हमारी अवामी असम्बली है, हम मुतालबा करते हैं कि जो अतहर मिनल्लाह की मौक़िफ़ है, ये पूरी अवामी असम्बली उसके साथ है।